صلی علی محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس خیال کے ساتھ کہ حضور ہمارے صلاۃ السلام کو سن رہے ہیں اور ہمارے صلاۃ السلام کا جواب دے رہے ہیں۔ بڑھیا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک آپ سب کو مبارک کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، اس کے ساتھ ایک دو واقعات جو اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرامت کی شکل میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ولیوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کا کھیل بھی بہت الگ ہوا کرتا ہے، اور حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیل بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہوا کرتا، وہ کھیل بھی بڑا الگ تھا۔ بچپنے میں ایک دفعہ کھیل کھیل رہے تھے، سبھی بچے وہاں جمع ہو گئے، سبھی بچے کھیلنے آئے تھے۔ اس کھیل کے دوران حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں سے فرمایا کہ اگر تمہیں کھیل کھیلنی ہے تو ایسی کھیل ہوگی کہ تم سب دوڑنا آگے آگے اور میں دوڑوں گا تمہارے پیچھے، لیکن دوڑنے میں کیا کہنا ہوگا کہ جب میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تم سب کہنا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے کھیل کی شروعات ہوئی اور حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کھیل شروع کیے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، محمد پیچھے سے بچوں کی آواز آتی تھی محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں یہ کھیل بھی ایسا تھا، واسطہ تھا کہ اس میں کلمے پڑھ کر کھیل کھیلتے تھے، یہ بچپنے کا عالم تھا۔ ایک دفعہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے کہا کہ بیٹے تم جب بچپن میں کھیلتے تھے، جب بڑے ہو گئے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امی نے فرمایا کہ بیٹے جب تم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ تم جب سبھی بچے کھیل میں چھپا چھپی کھیلتے ہیں نا، تو اس چھپا چھپی کھیلنے میں جب سبھی بچے چھپتے ہیں کوئی بھی بچے تو تم سبھی بچوں کو کھوج لیتے ہو، لیکن جب تم چھپتے ہو تو تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بتاؤ میرے عبد القادر تم چھپتے کہاں تھے؟ سبحان اللہ۔ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی جان اس وقت میں سورج میں جا کے گم ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، اس سبحان لیے مجھے اللہ۔ بچے کھوج نہیں سکتے تھے۔ تو اس کی امی محترمہ فرماتی ہیں کہ بیٹے تم سورج میں گم ہو جاتے تھے، تم اس وقت بچپنے کا عالم تھا، تم سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، 12-13 سال عمر ہو گئی تھی، کہتی ہے کہ بیٹے اب کیا عالم ہے، ذرا اب کے حالات کو بتاؤ۔ تو کہتے ہیں امی جان اب میں سورج میں کیا چھپوں، اب تو کتنے سورج مجھ میں گم ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، قیامت تک گم ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو امی جان جو ہیں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ان کا مقام مرتبہ کا علم ہوتا ہے کہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ بے شک۔ یہ چونکہ بچپنے کا عالم تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، اور چونکہ اس دور میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی، جو حالات بنے ہوئے تھے،
उस वक्त को अल्लाह पाक ने जो करामतें उनसे आई हैं वो इसलिए खास कर हुआ कि उस दौर की बुराइयों को मिटाना अल्लाह का मकसद। बड़े बड़े दबंग लोग थे जो इस्लाम का नाम कोई लेता, कोई अल्लाह रसूल की बातें करता तो उस पर तलवारें चलाया जाता था, उसको जान से मार दिया जाता था। ऐसे ऐसे लोग थे। जब तशरीफ फरमा हुए और इल्म हासिल करने के लिए जब घर से निकल रहे थे तो सबको पता है कि उनके अम्मी जान ने कहा कि बेटे जा रहे हो तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा सच बोलना। ये सच बोलने की बात हम बार बार सुनते हैं और ये वाक़या सुनने में आता है कि हम ये वाक़या को एक कान से सुनते हैं और उधर सुना देते हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हम अल्लाह वालों का जिक्र सुनते हैं तो उसको हमें कितना अमल करने की जरूरत है। एक सच बोलने के पीछे कितनी सारी बातें हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया कि अगर किसी के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, सहाबा किराम ने पूछा था कि या रसूलल्लाह अगर किसी के साथ बहुत सारी बुराइयां हैं तो वो अपनी बुराइयों को कैसे दूर कर सकता है, कौन सी बुराइयों को दूर करे तो उसकी बुराइयां दूर हो सकती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर बहुत सारी बुराइयां हैं तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दिया जाए, सच बोला जाए, और जब सच बोलेगा इंसान तो खुद ब खुद बुराइयों से दूर होता जाएगा। बेशक तो हुजूर की अम्मी जान ने भी यही नसीहत की थी। उम्मुल खैर ने यही कहा था कि बेटे जब कहना सच बोलना, और सच बोलने की वजह से उनके साथ वो हुआ तो दुनिया देखी और वो करामत की शक्ल में जाहिर हुआ, और एक नहीं हजार। और आज जो की करामत को सिर्फ हम अहले सुन्नत और अहले सूफी जमात के लोग नहीं मानते, सिर्फ हम नहीं मानते बल्कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी कौम 73 फिरकों में बैठेगी, वो 73 फिरका इस बात को मानता है, इस बात को जानता है कि जो करामात हैं कितने कसरत से कितने कसीर हैं, ये करामात को वो भी जानते हैं, हम नहीं जानते। बस फर्क ये है कि वो जानकर छोड़ देते हैं और हम जानकर मान लेते हैं। मानना और जानना, मान लेने से ईमान हमारा मजबूत वालों से और वलियों से मोहब्बत में इजाफा होता है, हमारी रूहानियत में ताकत मिलती है, रूहानियत और मजबूत होने के लिए हमें अल्लाह वालों का जिक्र करना और सुनना चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। और अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र ही अगर कहें तो वलियों का जिक्र और सियासत का जिक्र, वलियों की शान का जिक्र, तब तमाम चीजें अल्लाह की नूर है और अल्लाह की नूरियत का जिक्र है। तो इन चीजों से दिलों को इत्मीनान मिलता है, और यही इत्मीनान जो है हमें आखिरत में काम आने वाली। बेशक तो एक दफा का जिक्र है कि मुझे बहुत से आसान के पास एक बंदे आए, एक मुरीद आए और कहने लगे कि मेरी चंद बेटियां हैं, आप मुझे कुछ वजीफा बताएं। तो के पास बहुत सारे वजीफे थे। एक वजीफा वो था जो आपकी वालदा मोहतरमा ने जब जा रहे थे इल्म हासिल करने बगदाद, तो उस वक्त एक वजीफा दिया था और कहा था बेटा इस वजीफे को गले से लगा लेना, दिल से लगा लेना, अपने रूह से लगा लेना। और फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्र में 90 साल 92 साल की उम्र मुबारक तक फरमाते हैं कि मैंने अपना हर वजीफा छोड़ दिया था। बहुत सारे वजीफे करते थे तो हर वजीफा छोड़ दिया था सिवाय इस वजीफे के जो मेरी माँ ने मुझे इल्म हासिल करने के वक्त जाते वक्त जो वजीफा दिया था। में वास्पाक सिर्फ एक ही वजीफा करते। वजीफा तो उनका बहुत सारा है। वास्पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे अफजल वजीफा ये है कि आप फरमाते हैं कि लोगों तुम मुझसे वजीफा पूछते हो
वजीफा जानना चाहते हो तो जान लो कि सबसे बड़ा वजीफा ये है कि तुम अपने जुबान को लजीज खाने से बाज आ जाओ। सुभान अल्लाह। कोई इस बात को मानता है? आज हमारी जुबान मानती है? हम अच्छी चीजों को खाने के लिए, लजीज खाने के लिए हम लोग पीछे भागते हैं। कोई भी इंसान, एक बच्चा से लेके एक बड़ा तक, इंसान सोचता है ना कि उबला हुआ चीज, डॉक्टर कहता है उबला हुआ खाओ, बीमारी नहीं होगी, पेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हम सब लोग इस बात को फॉलो नहीं कर पाते और इस वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन वास्पाक ने फरमाया कि सबसे बड़ा वजीफा अगर तुमको करना है तो ये वजीफा करो कि अपनी जुबान को लजीज खाने से परहेज करो, बचाओ। जितना लजीज से बचाओगे ये सबसे बड़ा वजीफा की शक्ल में तुम्हारे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। ये वजीफा हुआ। लेकिन उस वास्पाक के जो मुरीद हैं वो आते हैं, कहते हैं कि हुजूर मेरे पास चंद बेटियां हैं, कुछ बच्चियां हैं मेरे पास, 2-4 बच्चियां हैं, आप उन बच्चियों को कुछ वजीफे बताएं ताकि मेरी बच्चियां कुछ वजीफा करें और वो आपके बताए हुए आप बता दें। तो वास्पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाते हैं, इसके बाद सर उठाते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम अपने बच्चों से कहना कि हर दिन 111 बार या फातिमा या फातिमा या फातिमा कभी किया गया। सुभान अल्लाह। 111 बार। वो मुरीद कहते हैं या मेरे वास्पाक ये तो बताएं कि या फातिमा ये तो नया वजीफा दे दिया है, तो इन वजीफों को पढ़ने से क्या होता है? लोग पूछते हैं ना, अक्सर पीर साहब से मुरीद पूछ सकते हैं, उनका हक है, तो कहते हैं इनको पढ़ने से क्या होता है? तो फरमाते हैं वास्पाक कि जब आपकी तुम्हारी बेटियां या फातिमा का विर्द करेंगी तो उन बेटियों में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो मिजाज थे कम से कम वो तो पैदा होंगे, उनके अंदर पर्दादारियत थी वो तो पैदा होगी, जो उनके अंदर हया थी वो तो कम से कम बेटियों में पैदा होगी। तो ये पास पैदा होने के लिए अपनी बेटियों को कहना कि फातिमा का जिक्र करे, क्योंकि मेरी वालिदा मुहतरमा भी है जिनका नाम है उम्मुल खैर फातिमा, तो वो भी बड़ा पाक-बाज़ पाक-दामन बीवी है। और मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी बीबी फातिमा है, वो भी बहुत पाक-दामन बीवी है। तो जब बच्चियां या फातिमा का विर्द करेंगी तो उनमें जो किरदार पैदा होंगे कम से कम उसको असर आएंगे। तो एक बंदा खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या गौसे आज़म, तो मेरे पास तो बेटियां नहीं, मेरे पास तो बेटे हैं, मैं क्या करूं? सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सबकी अपनी अपनी मोहब्बत हुआ करती है। तो कहते हैं कि मेरे पास बेटे हैं, मैं क्या करूं? वास्पाक फरमाते हैं तो अपने बेटे से कहो कि मेरा नाम लिया करें, सुभान अल्लाह, मेरा नाम लिया करें। तो अब इससे बात वाज़ा हो गई कि अगर बेटे हैं तो नाम लेंगे तो इसका असर आएगा। तो कहने का मनसा ये है कि जिनका नाम लेते हैं उनका असर आता है, उनके किरदार का असर, उनके अखलाक का असर, उनके रूहानियत का असर। शराब पढ़ते हैं अल्लाह वारिस, अल्लाह वारिस, तो अल्लाह का किरदार क्या है? वारिस का किरदार क्या है? अल्लाह वारिस, वारिस अल्लाह भी है, वारिस रसूलुल्लाह भी है और वारिस गौसे आज़म भी है। तमाम का जो 99 नाम रखते हैं वो सभी का नाम में वारिस आप पाएंगे। तो ये वारिस सब वारिस, मतलब ये नूर अल्लाह का नूर ही वारिस, तो वही है अल्लाह वारिस। और वही हमारे पीर और मुर्शिद जिस तसव्वुर से पढ़े वो अल्लाह वारिस, वही अल्लाह वारिस है, इसको हम लोग विर्द करते हैं। जब हम इस तसव्वुर के साथ किसी चीज को, वजीफे को पढ़ते हैं अपने पीर साहब का दिया हुआ, तो वो हमें काम आता है, दुनिया में भी काम आएगा और हमें आखिरत में भी काम आएगा। बस यही बात है साहब। तो वास्पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज्ञान जो कि बहुत लॉन्ग हो सकता है, मगर वक्त को देखते हुए 5-10 मिनट में यही खत्म किया जाता है। आप लोगों से अर्ज है कि बस वास्पाक के इस मुबारक महीने में एक वाक़या ज़हन पे आ रहा था, चलिए इसको बोलिए, छोटा सा वास्पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है और एक बंदा जो है वो बाजार में
यहूदी का था, वो बाजार में गया अपने घोड़े को बेचने, और घोड़े को जब लेकर गया तो उस घोड़े को बेच रहा था। बेचने के लिए वो दिन भर आवाज लगाता रहा कि ये घोड़ा 5,000 का, ये घोड़ा 5,000 का। दिन भर वो आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई भी घोड़ा खरीदने नहीं आया। यहाँ तक कि शाम का समय हो गया, शाम का वक्त हो गया। उसके बाद उसने देखा कि जब शाम हो गया तो अब 5,000 में घोड़ा कोई नहीं खरीद रहा, तो बेचारा रोने लगा, उदास हो गया। उदासी छा गई कि अब मेरी बेटी की शादी में अब कैसे होगा, घोड़ा तो नहीं बिका। तब उसने आवाज लगानी शुरू की कि अब ये घोड़ा 2,000 का, अब ये घोड़ा 2,000 का। अल्लाह जब ये आवाज देने लगा तो बस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उधर से गुजर हो रहा था, तो पूछने लगे आगे आपको क्या हुआ, क्यों इतना उदास हो और घोड़े को 2,000 में बेच रहे हो। उसने कहा बात ऐसी है हजरत कि मैं इसको 5,000 दाम तो रखा था, मगर अब शाम हो गई तो इसलिए मैंने इसके दाम कम कर दिया, अब ये 2,000 का कर दिया। तो बस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जेब से चंद पैसे निकाले और उसके पास रख दिए और कहा कि घोड़ा मुझे दे दो। सुभान अल्लाह जब उसने पैसे को गिना तो 5,000 रुपए, सुभान अल्लाह। तो उसने कहा, उस बंदे ने, ईसाई बंदा जो था, उसने कहा हुजूर ये तो आपने 3,000 ज्यादा दे दिए हैं, मैंने तो 2,000 दाम रखे थे। तो हुजूर बस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जुमला कहे यहाँ पे, वो जुमले पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहते हैं कि मैंने अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर जिंदगी में किसी की मजबूरी कभी मत खरीदना। अगर किसी से कोई सामान खरीदना हो तो खरीद लेना, लेकिन किसी की मजबूरी मत खरीदना। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा किया। कि तुमने 5,000 दाम रखे थे, मजबूरी में तुमने 2,000 किए, वो तुम्हारी मजबूरी मुझे नहीं खरीदनी है। 5,000 ये देखना था कि वो ईसाई आपने कदमों की भी पड़ा और उसी वक्त कहा कलमा पढ़ाएं, और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।